Hello students, in part 13, I will discuss 5 more questions on trigonometric functions. So let us start the first question. If x cos theta is equal to y cos theta plus 2 pi upon 3 is equal to z cos theta plus 4 pi upon 3, prove that xy plus yz plus zx is equal to 0. Now, in this expression, all x cos theta is equal to y cos theta plus 2 pi upon 3 equal to z cos theta plus 4 pi upon 3. Let all these values be equal to k. So let x cos theta is equal to y cos theta plus 2 pi upon 3 is equal to z cos theta plus 4 pi upon 3, and all these values, let these values be equal to k. Now, uh, from this condition we can find, uh, first let us put x cos theta is equal to k. So this gives cos theta is equal to x upon k, k upon x. And from the second expression, if we put it equal to k, then cos theta plus 2 pi upon 3 is equal to k upon y. And from this third equality, cos theta plus 4 pi upon 3 is equal to k upon z. Now, if we add these three equalities, then we will be having x, y, and z in the denominator, and adding k upon x plus k upon y plus k upon z is equal to cos theta plus 2 pi upon 3 plus cos theta plus 4 pi upon 3. Why this step? By adding, if we take the LCM, अगर हम इसका LCM लेंगे तो then we will be having x, y, z, zx and xy. Number 1 point, which we want in the result. Number 2, here we can apply the trigonometry addition formula we can apply, and from that addition formula we will bring it equal to 0. तो अब देखिए, अब आगे हमें क्या करना है. Let us take the LCM. LCM is x, y, z, and then we in the numerator we have x, y, z divided by x equal to y, z, k, y, z plus k, z, x plus k, x, y is equal to, यहाँ पे हम cos c plus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So leaving cos theta, and here we can apply cos c plus cos d. And students, you know, cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. So applying that formula, 2 cos c plus d, that is theta plus 2 pi upon 3
plus theta plus 4 pi upon 3 divided by 2, and cos c minus d. Cos c minus d means cos of theta plus 2 pi upon 3 minus theta minus 4 pi upon 3 divided by 2. Now this is equal to cos theta plus 2 cos, on simplification, theta and theta is 2 theta plus 2 pi upon 3 and 4 pi upon 3, 6 pi upon 3 means 2 pi upon 2 cos. Here theta and theta get cancelled. 2 pi upon 3 minus 4 pi upon 3 is minus 2 pi upon 3 divided by 2. Minus 2 pi upon 3 divided by 2 is equal to minus pi upon 3. So this is equal to cos theta plus 2 cos. Here you can take 2 common in the angle and this 2 and 2 will get cancelled. Cos theta plus pi. And cos of minus theta is cos theta, so cos of pi upon 3. So this is equal to cos theta plus 2 cos theta plus pi, means you are in the third quadrant, and in the third quadrant cos is negative, so this is equal to minus cos theta. And cos of pi upon 3, cos 60 is 1 by 2. So this 2 and 2 is cancelled here. So this is equal to cos theta minus cos theta, which is equal to 0. Cos theta cancel, this is equal to 0, means this expression is equal to 0. So if you take k common, yz plus zx plus xy upon xyz is equal to 0, which implies that yz plus zx plus xy is equal to 0. और हमें यही रिजल्ट में लेके आना था कि yz plus zy yz plus xy plus zx is equal to 0. तो देखिए अगेन हम आपको रिवाइज करके बता रहे हैं कि ये तीनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं. लेट ऑल दीज बी इक्वल टू द वैल्यू k. नाउ फ्रॉम दिस इक्वालिटी x cos थीटा इज इक्वल टू k, आप cos थीटा की वैल्यू निकालिए. cos थीटा इज k अपॉन x. फ्रॉम द सेकेंड एक्सप्रेशन cos थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू k upon y. From the third equality cos theta plus 4y is equal to k upon y. Now adding, because on adding if you take the LCM further you get yz plus zx plus xy, which is required in the result. तो राइट हैंड साइड में आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन में. cos c plus cos d, 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, रिजल्ट आता है 0. इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0. और इससे इम्प्लाई होता है कि yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 0. इस तरह से स्टूडेंट दिस सॉल्यूशन इज कंप्लीट. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. cos x is equal to minus 3 upon 5. x lies in third quadrant. Find cos x upon 2, sin x upon 2, tan x upon 2 and sin 2x. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम cos x की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, बिकॉज यू नो cos x is equal to 2 cos square x by 2 minus 1. From this identity we can find cos x by 2 is equal to 1 plus cos x upon 2 and its square root with plus minus sign. क्योंकि स्क्वायर को आप हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा. 1 को ट्रांसपोज कर लीजिए. नाउ दिस प्लस माइनस साइन विच वी हैव टू कंसीडर, प्लस लेना है माइनस लेना है, ये डिसाइड होगा
एक्स वाई टू के एंगल से, क्वाड्रेंट से। कैसे डिसाइड करेंगे? एंगल एक्स कहाँ लाई करता है? एंगल एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी एक्स की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन पाई है और लेस देन 3π/2 है। तो हम देखेंगे कि एक्स वाई टू कहाँ लाई करता है, तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये π/2 और यहाँ पे 3π/4, यानी कि एक्स वाई टू की एंगल की वैल्यू π/2 से ग्रेटर है और 3π/4 से लेस है। मीन्स एक्स वाई टू लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स वाई टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो एक्स वाई टू एंगल की रेंज फाइंड करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको क्वाड्रेंट पता चल जाएगा कि हमें इस क्वाड्रेंट में कॉस को कैसा लेना है, प्लस लेना है, माइनस लेना है। अब आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एंगल की वैल्यू एएसटीसी रूल से नेगेटिव होती है, तो आप यहाँ पे कॉस एक्स वाई टू में केवल नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। cos एक्स वाई टू इज इक्वल टू माइनस √1 प्लस cos x अपॉन होल अपॉन 2। नाउ cos x वैल्यू इज गिवन, तो विद साइन पुट करेंगे -3/5, तो माइनस √1 एंड द वैल्यू ऑफ cos x इज -3/5, 1 -3/5/2। So this is equal to, on taking the LCM, minus under root 5 minus 3/5, that is 2/5, 2/5/2, 2 and 2 is cancelled here one time, तो आपकी वैल्यू आ जाती है cos x by 2 की वैल्यू हमारी -1/√5। अब हमें sin x by 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। sin x by 2 की वैल्यू या तो आप आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 करके यूज कर लीजिए, या फिर यहीं से हमारे पास sin x का भी एक फॉर्मूला होता है, और sin x by 2 के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है प्लस माइनस √1 माइनस कॉस x अपॉन 2। Because you know cos x is equal to 1 minus 2 sin square x by 2. From that identity you can write that sin x by 2 is equal to plus minus √1 minus cos x upon 2, और cos x by 2 is equal to √1 plus cos x upon 2। तो ये आप लर्न कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के फॉर्मूले। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, इन सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स बाई टू, यहाँ पे हमने cos x बाई 2 को नेगेटिव लिया था सेकेंड क्वाड्रेंट में, और x इन सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड यू नो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो हम यहाँ साइन का पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू प्लस √1 माइनस cos x अपॉन 2, और यहां पुट करेंगे cos x की वैल्यू विद साइन -3/5, तो ये प्लस √1 माइनस और cos x की हम पुट कर देंगे -3/5 और होल अपॉन 2, तो दिस इज इक्वल टू प्लस √5 5 plus 3, 5 plus 3 means 8/5 divided by 2, 8/5 divided by 2, so this is equal to plus √8/5 into this 2/1 will become 1/2, 2 4 times cancelled, so we get the value is equal to plus 2/√5. Square root of 4/5 is plus 2/√5. Now we need tan x by 2. तो tan x by 2 के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट sin x by 2 की वैल्यू को cos x by
2 से डिवाइड करना है। साइन एक्स बाई टू इज 2/√5 और cos x बाई टू की वैल्यू है हमारी -1/√5। कोई साइन अपने आप जो साइन आ चुके हैं वही साइन आपको कंसीडर करने हैं, कोई अब इसके लिए कोई हमें क्वाड्रेंट नहीं देखना है। अब देखिए ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू √5 एंड √5 अगेंस्ट इट इज इक्वल टू -2। तो आप देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स कि करेक्ट साइन है हमारा। अब आपको एक और वैल्यू फाइंड करनी है sin 2x की। तो sin 2x यू नो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। sin x cos x भी ऑलरेडी है और हमें अब फाइंड करना है केवल sin x। तो sin x फाइंड करने के लिए हम यूज कर लेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए आपको एक्स एंगल हमारा है, एक्स एंगल लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स होगा हमारा नेगेटिव, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स हमारा जो है नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। और इस केस में आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -√1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको कॉस एक्स की वैल्यू पुट करनी है -3/5। तो ये माइनस अंडर रूट एंड स्क्वायर ऑफ -3/5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कॉस एक्स की वैल्यू का तो 9/25। और इसको जब अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 - 9 यानी कि -16/25 -4/5। तो ये हमारा साइन एक्स की वैल्यू आ गई है और कॉस एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है -3/5। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं साइन 2x की वैल्यू। तो साइन 2x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो साइन 2x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 और साइन x की वैल्यू हमने फाइंड की है -4/5। 2 इंटू -4/5 इंटू cos x इज -3/5। तो ये आपका 2 4 8 24 प्लस 24/24। तो इस तरह से आपके तीनों वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं, 4 वैल्यूज यानी cos x by 2। cos x by 2 is -1/√5, sin x by 2 is 2/√5 and tan x by 2 is -2 and the value of sin x value of sin 2x is equal to 24/25। स्टूडेंट अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 tan alpha is equal to 3 tan beta, prove that tan alpha minus beta is equal to sin 2 beta upon 5 minus cos 2 beta। तो ये प्रूव दैट से देखिए राइट हैंड साइड से इट इज क्लियर कि आपको सारा रिजल्ट tan के बीटा के टर्म्स में लेकर आना है। तो लेट अस सॉल्व इट। सॉल्यूशन tan alpha minus beta you know is equal to tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha into tan beta। और अब आप यहाँ पे tan alpha की वैल्यू रखेंगे बीटा के टर्म्स में। फ्रॉम हेयर यू कैन सी 2 tan alpha इज इक्वल टू 3 tan beta। यहाँ से tan alpha की वैल्यू आपकी 3/2 tan beta है। ये पुट कर देंगे हम इस फॉर्मूले में। तो अब यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूले में tan alpha की जगह 3/2 tan beta माइनस tan beta अपॉन 1 प्लस 3/2 tan beta into tan beta। So this is equal to 3/2 tan beta minus beta is 1/2 tan beta।
एंड इन द डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1/1 प्लस 3/2 tan स्क्वायर बीटा। अब अगर हमें साइन कॉस का फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, हम यहाँ पर टेन बीटा की वैल्यू पुट करेंगे साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और ऐसी तरह से डिनोमिनेटर में पुट करेंगे 1 प्लस 3/2 और टेन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखें क्या करना है, देखिए आपको दिस इज इक्वल टू और हाफ साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और इन द डिनोमिनेटर वी कैन टेक एलसीएम, एलसीएम है 2 cos स्क्वायर बीटा, 2 cos स्क्वायर बीटा। और अब आप अगर इसको एलसीएम के बाद सॉल्व करेंगे तो डिवाइडिंग 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 1 दैट इज 2 cos स्क्वायर बीटा इंटू 1, 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा। और अब इस डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसे हम पहुंचाते हैं ऊपर, तो यह है हाफ साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर 2 cos स्क्वायर बीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा। नाउ दिस 2 को रहने देते हैं, 2 को न्यूमरेटर में, और cos बीटा से इसे कैंसिल करेंगे, cos स्क्वायर बीटा को cos बीटा टाइम्स, तो वी आर हैविंग नाउ 1/2 2 sin बीटा cos बीटा। 2 को हमने इंटैक्ट रखा है क्योंकि इससे sin 2 बीटा का फॉर्मूला बना लेंगे। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में हमें cos 2 बीटा लेके आना है, तो cos 2 बीटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 cos स्क्वायर बीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा को ब्रेक करना है, 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा। क्योंकि यहां से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ साइन स्क्वायर बीटा को हमें एक आइडेंटिटी पता है कि cos साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 बीटा अपॉन 2, क्योंकि हमें एंगल को कन्वर्ट करना है cos 2 बीटा में। तो अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, हाफ इनटू 2 sin बीटा cos बीटा इज sin 2 बीटा, न्यूमरेटर हमारा साइन के ट्वाइस एंगल में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस टेक 2 कॉमन, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज 1, सो ये हमारी वैल्यू आती है 2, प्लस दिस साइन स्क्वायर बीटा को हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे 1 माइनस cos 2 बीटा अपॉन 2, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस cos 2 बीटा अपॉन 2। Now this is equal to half into sin 2 बीटा, और यहाँ एलसीएम आप लेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 माइनस cos 2 बीटा अपॉन 2, 2 2 जा 4 and 1 5, this 2 and 2 is cancelled here, so this is equal to sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा। और यही हमको करना था, प्रूफ के tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा, एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका हो गया है सॉल्व। स्टूडेंट्स बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो विद दिस क्वेश्चन दिस पार्ट इज ओवर। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।